together, and we are going to have a very small but very important topic which gives you a brief idea about the whole forensic medicine specifically, like what is the importance of this subject specifically in regard to its medical importance. Like this is the thing which you have witnessed, which you have heard, which you are intrigued to the topic crime scene investigation. This is a thing which you came to know normally in your everyday life. In newspapers, there are many types of crimes which happen every day, and in your mind you can think about that obviously every crime has a place, has a location where it is committed, and it is the basic area from where our investigation most of the time started. The way we are going to investigate it, what is the importance of our subject in this, what is it, our interaction with investigating agencies, our interaction with other police persons, with the court, all the things come under this crime scene investigation. The basic learning objectives of this is, first of all, you should know what is basically the crime scene investigation, what are the factors which are there in the crime scenes which we are going to investigate, then what are the basic objectives, why are you going to investigate the crime scene, what's your role, like the doctor's role in the crime scene investigation, what are the objectives which a doctor is fulfilling and the responsibilities of a doctor in the investigation of crime scene. As you all know, I'm going to tell you the system of investigation which is there, and in this system of investigation, basically the full-fledged onus of investigation is, or the responsibility of investigation is not on a medical doctor, okay? Because we have a different system of investigation, okay? We will discuss it. Then the most important thing is the reconstruction of the sequence of the crime which happened. This is the last thing which we normally, the investigating agencies normally does that, reconstruct. Like for example, in road traffic accidents, sometimes they almost reconstruct the scene of crime just to know, okay, the brakes were going to apply or not, but was the intention. Even in, no talking guys, even in cases of gunshot injury, most of the time they have similar kind of weapons, and in the place of victim they place some dummy, okay? And they shoot the person just to show the distance, just to reconstruct the scene, to know the distance of the fire, the direction of the fire. So these are all the specific objectives or the learning outcomes which you should know at the end of this lecture. So as you all know that forensic medicine is basically not just a specific subject like pathology, like physiology, like anatomy, where you are going to have a typical type of study. Like in anatomy, you are going to study different things. In pathology, you are going dysfunctional things of human physiology and and also anatomy. But in forensic medicine, we are going to have an umbrella where all the subjects basically intermingle with each other. Okay? We use the knowledge of anatomy for our own purpose, that is a legal purpose, because you all know that this is also known as medical jurisprudence or the legal medicine. Okay? So we use our purpose of anatomy for that purpose. We use our knowledge of pharmacology for the purpose to investigate the toxicology. The toxicology is also part of forensic medicine. Okay? We use our other knowledge of scientific studies for the furtherance of justice and the betterment of society. So it is basically a merger of various subjects. Okay? So subject speaks to almost every branch of the medicine, but specifically the branches which are basically mostly attached to the forensic is, first of all, the forensic odontology. You all know that odontology is the study of teeth, okay? Study of teeth, and you all know what is the most important thing you know about the teeth, like what is the most important information the teeth gives us? Age. Okay, first of all, age. Then you are very right, from the pulp we can have the DNA and the absolute individuality
determined with the help of this teeth, because teeth are normally resistant even to fire. In case of bomb blast, in case of air crash accidents, mostly these are the teeth or the dentures or these things which give the complete identity, as in case of General Zaudhar or in the case of later Junaid Jamshed. Okay? In all the cases, odontology helps identify the individuality of the person. Then, as we are going to discuss in practicals, also the forensic anatomy, that is the information we gather from the bones, are also important, from the individuality till the cause of the death. Radiology also reinforces that radiology also helps us to know the cause of the death and specifically the age of the person we will have from the radiology. Ballistics is very important. We should know from observing the wound that from which kind of weapon this wound is. Either it is from the smooth bore or it is from the rifled weapon. Okay, if it is from the rifled weapon, is it a pistol or it is a Kalashnikov? So the importance and the role of the forensic ballistic is very important. And in Forensic Sciences Agency at Thokar Niaz Beg, we will go and we will visit that ballistic where you can see the test shots, you can see the various kind of weapons and how they work. Then psychology, forensic psychology is very important. As in the previous lecture, professors have told you that there are various patients which always have feigned insanity, like fake insanity. They say that we are insane. They are going to give different type of gestures to prove that they are insane. But it is a job of the psychiatrist, which is related to the forensic medicine, medical legal psychiatrist, which help us to identify between a true insane and a fake one. Then serology, all the biological evidences and non-biological evidences which we are going to collect from the scene of crime, from the body of the assailant, from the body of the victim, this all is merged in the forensic serology. And toxicology is obviously related to the poison, and here we are going to establish which type of poison, how it was given, what was the dose, what was the mode of action of that poison. And then all these things help us, all these branches help us in determination of the crime scene or the determination of the crime. But the crime scene investigation is separated out by your university as a separate topic, because we need little bit of all of these information, okay, from the scene of the crime to help the investigation, because collection from this point is very important, and this collection is then went to lab or somewhere else. Okay? If the body is there, the body is recovered, sent to the autopsy suite where the autopsy was conducted. If any type of trace evidence you will find from the scene of crime, it was sent to the lab. So investigation at the scene of crime is very important, and it is served as a separate discipline. In Forensic Sciences Agency, if anyone has any knowledge of the case studies, there is a small unit, of crime scene investigation where they have a full ambulance kind of choti si gaadi hai, where all the system is there, and specific cases where government needs their support, the specific crime scene unit went there, they collect the things, they dispatch the things. Otherwise, in our country, normally पुलिस does the same. ठीक है, पुलिस होती है, वो हमारे पास से ये सीन ऑफ क्राइम पे जो फर्स्ट विजिटर्स होते हैं वो पुलिस होती है. What is the investigating system in Pakistan? Very nice, very nice, very nice. So if we are in America or किसी और जगह होंगे जहाँ पे आपका मोड ऑफ या आपका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम कॉरोनर है या मेडिकल एग्जामिनर है, then we will be the first one to be there at the scene of crime. वहाँ पे डॉक्टर अलग से scene of crime पे जाते हैं. But यहाँ पर police is the person जो normally scene of crime पे जाती है. They can request you on some specific condition. For example, if the body is in a condition where transport नहीं हो पा रही है, you have to perform autopsy there. Or there are specific kind of things which you can tell as a specialist, तो वो आपको बुला लेते हैं, ठीक है? But normally जो है वो पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और कुछ स्पेशलिस्ट भी विल सी कि कौन-कौन जाता है सीन ऑफ क्राइम पे, वो जाते हैं. बट इफ यू आर परफॉर्मिंग समथिंग, ठीक है, और आपको प्रीवियस नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक इफ अगर आपके माइंड में क्राइम सीन का
पूरे का पूरा है मैप है, ठीक है, आपको पूरा अंदाजा है कि क्राइम सीन पे हुआ क्या था, तो आपकी जो फर्दर ऑटोप्सी है आप उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ। यू शुड नो अबाउट द क्राइम सीन, और आप पुलिस से भी अगर पूछोगे तो इफ़ यू हैव द क्लैरिटी ऑफ द स्टेप्स which you have to follow at the crime scene, तो उसी वक्त में आप उनसे वो questions पूछ सकते हो कि okay, have you followed this one? What were basically the basic things when you visited scene of crime? This can only happen if you have the knowledge of this. That's why it is important to teach the students, medical students, about the crime scene. Otherwise, previously it was just taught to police officers or the lawyers, और उनका काम हुआ करता था, ठीक है। DNA profiling वो हम सारा जो है वो specifically करते हैं। So crime scene investigation में, as I told you, reconstruction is very important, and for the reconstruction, first impression जब आप जाते हो तो पहले आपने जो देखा होता है वो आपके माइंड में रहता है, उसी को आपने एंड में रिकंस्ट्रक्ट करके अपना जैसे रोल प्ले करते हैं। और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पे हम हमेशा आपसे रोल प्ले भी करवाते हैं, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सीन होती है, विच हेल्प्स यू कि ओके एक बंदा यहाँ पे था, वो वहाँ पे था, उसने किस तरह से फायर किया होगा, दो फायर अगर मल्टीपल हुए हैं तो मे बी 2 पर्सन्स आर ऑब्वियसली इन्वॉल्व, या एक वक्त में या एक इंसान ने पहले यहाँ किया बाद में वहाँ किया, तो वो आप एज ऑफ द वुंड से बता सकते हो कि ये इससे पहले का है या उसके बाद का है, एंटी मॉर्टम है, पोस्ट मॉर्टम है, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स है। ऑब्वियसली मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स एट द सीन ऑफ क्राइम, वहीं पे शुरू हो जाती है, जो जितने लोग वहाँ पे जाते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो जाती है। इफ देयर इज अ प्लेस जहाँ पे आपको विटनेस भी वहाँ मिल जाए, तो विटनेस की इन्वेस्टिगेशन भी एट द सीन ऑफ क्राइम, और सम टाइम इफ द मर्डरर इज इवन देयर, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी एट द सीन ऑफ क्राइम स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आ जाता है ट्रेस एविडेंस। दिस इज द थिंग दैट इज व्हाई नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि वहाँ से हमने ट्रेस एविडेंस कलेक्ट करना है, एंड दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग, एंड द पुलिस शुड बी वेरी विजिलेंट इन दैट, बिकॉज अगर आपने कोई ट्रेस एविडेंस एक दफ़ा मिस किया, इट इज़ गॉन फॉरएवर, या आपको मिल गया, आपने ठीक से प्रिजर्व नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया, भेजा नहीं है, समटाइम देयर कैन बी अ सिंगल ट्रेस एविडेंस, ठीक है, और वो अगर आपने मिस किया तो दैट इज द सोल ऑफ द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इज ट्रेस एविडेंस कलेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, और ऑब्वियसली ये ट्रेसेस आइडेंटिटी भी इस्टेब्लिश करेंगे, दोनों की, मर्डर की भी और विक्टिम की भी, प्लेस की भी आइडेंटिफिकेशन बता सकते हैं, और वेरियस जो मेथड्स यूज हुए हैं उनमें भी हेल्प आउट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कॉर्पस डेलिक्टाई, फर्स्ट डे भी हमने थोड़ी सी बात की थी। अच्छा, अब मजे की बात बताओ कि बेसिकली दिस इज द बॉडी ऑफ द क्राइम और ये नॉट द इंडिविजुअल बॉडी, बट क्या होता है कि इफ यू डू नॉट हैव एनी प्रूफ, you do not have body, ठीक है, and if you do not have any trace evidence, you do not have the identification of the trace evidences or identification of the specific person, most of the time जो है कोर्ट में ऑफेंस जो होता है वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा होता अगर बॉडी ऑफ ऑफेंस आप नहीं प्रूव कर सकते, और बॉडी ऑफ ऑफेंस प्रूव करने के लिए यू शुड हैव द ट्रेस एविडेंस और द एविडेंस either in the form of any weapon having the blood or something on that, or the body itself, or the disturbed scene of crime, or any type of evidence, any physical evidence. उसके बगैर अगर आप जाकर किसी को कहीं पे भी कहते हो कि एक जगह यहाँ पे एक मर्डर हुआ था और आप बता भी नहीं पा रहे हो कि वो लोग कौन थे, ठीक है, या who was the person who was murdered, मिसिंग पर्सन है बट आपके पास प्रूफ नहीं है कि वो वही था जो जिसका मर्डर हुआ है, you do not have any kind of trace evidence, तो वो कोर्ट में समटाइम्स सिर्फ मिसिंग पर्सन का आपके वो जो होती है रिपोर्ट FIR हो पाती है, आप प्रूव नहीं कर पाते इफ यू डू नॉट हैव द एविडेंस फॉर दैट। सो कॉर्पस डेलिक्टाई, द बॉडी ऑफ द क्राइम, टू प्रूव द बॉडी ऑफ द क्राइम यू नीड द ट्रेस एविडेंस। तो ये टर्म आपने याद रखनी है सॉरी, कॉर्पस डेलिक्टाई, बिकॉज ये वाइवास में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि व्हाट इज मेंट बाय द कॉर्पस डेलिक्टाई और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पस डेलिक्टाई। It basically shows the criminal responsibility, ठीक है, and obviously if there is a doubt and you have the corpus delicti, तो आप क्या करोगे, वो डाउट्स को या तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल उस इंसान पे या उसको प्रूव हो जाएगा। So any doubts are going to clarify with the help of the corpus delicti. So वही
वाली बात जो हम पहले कह रहे हैं कि फोरेंसिक मेडिसिन और द मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज आल्सो कॉल्ड एज लीगल और स्टेट मेडिसिन, ठीक है। एंड यू नो कि दिस इज थिंग जो कि जब से पाकिस्तान बना है, जब से फोरेंसिक मेडिसिन या पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम आया, these things are there despite of the efforts of various people that okay this is not directly into the medicine or something like that, but जब तक लीगल सिस्टम हमारा इससे रिलेटेड है, हमारे सब्जेक्ट का स्टेट मेडिसिन का स्टेटस जो है वो इसी तरह से है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो ब्रिज होती है बिटवीन द लीगल प्रोसीजर्स। आपके लिए भी जो होगा, लाइक इफ अ डॉक्टर वांट्स टू बी सेफ, ठीक है, एथिक्स पता हो, अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है वो पता हो, मैंने कॉन्सेंट लेनी है, मेरी कॉन्सेंट ना लेने से क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे हो सकती हैं, ठीक है, नेग्लिजेंस है, मैंने उससे कैसे बचना है। सो डॉक्टर के एंड के ऊपर भी जितनी उसको फायदे मिलेंगे फ्रॉम द लॉ, इट ऑल्सो covers in this legal medicine. So not only law is going to help us, we are also going to help us. So this is a two-way process. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं एज ए फोरेंसिक, अब क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, एज वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम पूरा डिफरेंट है, ठीक है। अब वहाँ पे जो फोरेंसिक मेडिसिन स्पेसिफिकली नहीं है, दैट इज बेसिकली नोन एज फोरेंसिक साइंसेज, उनके साइंसेज एक पूरी वो है, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी समटाइम वहाँ से ही होते हैं। हमारे पास ये होता है कि मर्जर होता है, वी हैव डॉक्टर्स विद अस, वी हैव इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स फ्रॉम द पीएफएससी विद अस, वी हैव पुलिस विद अस, इन सम केसेस मैजिस्ट्रेट्स आर आल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व, ठीक है। तो वो एक मर्जर है, तो कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, जो कोई क्राइम सीन आता है, कोई फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिनेरियो है कि एक डिसहार्मोनियस मैरिज थी और उसकी वजह से सेल्फ बर्न हो गया है, सुसाइडल बर्न, किसी ने अपने आप को कर लिया है, एक आपके पास सीन है। अब आप उस सीन ऑफ क्राइम पे जब जाओगे तो उस सीन ऑफ क्राइम पे व्हाट शुड बी द स्टेप्स यू शुड कीप इन माइंड, ठीक है। आपकी अप्रोच क्या होगी वहाँ पर जाके, आप क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर सकते हो, दीज आर ऑल द थिंग्स जो हम वहाँ पर क्राइम सीन के एग्जामिनेशन में देखेंगे, ठीक है। जैसे ये केस स्टडी आप देख सकते हो कि इस कंडीशन के अंदर आपने किस तरह से करना है। सो सीन ऑफ क्राइम पे जब भी जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सीन ऑफ क्राइम, आपको जो फर्स्ट डेफिनेशन माइंड में आएगी ना, वो ये आएगी कि दिस इज अ प्लेस वेयर एनी इलीगल एक्ट हैज बीन डन, ठीक है, और ये वो प्लेस है जहाँ से यू कैन हैव द मैक्सिमम ट्रेस एविडेंसेस टू कलेक्ट, एंड दिस इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ से आपको सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना है। तो आपने स्पेसिफिकली उस एरिया को जाके ऑब्जर्व करना है, कॉर्डन ऑफ करना है, पब्लिक से उसको डिफरेंशिएट करना है, येलो टेप्स लगानी है, पूरा आपने जो डू नॉट क्रॉस का एक आता है पूरा, उस तरह का आपने सीन जो है उसको डेवलप करना है। तो लोग जो है वो सब ये लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इसके अंदर होंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होंगे, डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, फोरेंसिक के लोग होंगे जो स्पेसिफिकली फोरेंसिक साइंसेज के लोग हैं, जिनमें फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, फोटोग्राफर स्पेसिफिक हो सकते हैं, तो वो सब लोग होंगे जो उस एरिया के अंदर जाएंगे। तो बेसिकली दिस इज अ टीम वर्क, ये सब लोग आएंगे और these all people help in establishing the specific investigation at the scene of crime. So it basically looks like, it can be any type of scene. It can be a road traffic accident, it can be a scene where the sexual assault has been taken place, it can be a place where robbery has taken place in a bank or somewhere, okay? So every type has different type of things. You have to look for different kind of जो अपनी trace evidence है, but something are similar और journal, ठीक है। In journal जो आपने चीजें करनी है वो हर एक में फेजेस सेम होंगे, कलेक्शन क्या करनी है वो आपके माइंड में, जो भी वहाँ पे लोग होंगे उनके माइंड में डिफरेंट होगी। समटाइम्स सिंपल केस है ना, वहाँ पे बॉडी नहीं मिल रही, कुछ केसेस हैं जो मर्डर के हैं प्रॉपर, वहाँ पे आपको बॉडी भी मिल रही है, तो आपने बॉडी को किस तरह से वहाँ पे ऑब्जर्व करना है और फिर उसको कैसे ट्रांसफर करना है, वो सब भी आपका आएगा। सो scene of crime is basically known as a place where illegal act has been taken place, ठीक है, और आपकी वो एरिया है जहाँ आपको सारी फिजिकल एविडेंसेस जो है वो नॉर्मली मिल जाते हैं। It can be outdoor, it can be indoor, it can be in any kind of conveyance, like बस में हो गया, ट्रेन में हो गया, कहीं पे भी हो गया। It can be a primary, like वही जगह है जहाँ पे सब कुछ हुआ। It can be a secondary place. बॉडी को कई दफ़ा शिफ्ट किया जाता है, बॉडी कहीं पे कुछ हुआ है और आपको एक सेकेंडरी प्लेस मिली है और आपको पता चल जाना चाहिए कि ओके
no, nothing is disturbed there. I cannot find any specific kind of trace evidence here. यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ये बॉडी यहाँ से ट्रांसफर हुई है, एंड देन यू लुक फॉर द प्राइमरी प्लेस जहाँ पे वो है. वेपन कई दफ़ा आपको वहाँ पे नहीं मिलता, वेपन किसी ने किसी फील्ड्स में जाके छुपा दिया है, ठीक है, किसी घर में मर्डर हुआ था, तो वो सेकेंडरी प्लेस भी है. तो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है क्राइम सीन, वो भी आता है. Forensic lab do not solve the crime. They basically give a specific layout. They help. करेगा कौन ये सारा कुछ? एट द एंड क्राइम को प्रॉपर कौन करेगा? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करेंगी या पुलिस करेगी. हम अपने एंड पे क्या करेंगे? उनके साथ कलेक्शन में हेल्प करेंगे, उन्हें बता देंगे कि ये ब्लड है, कितना पुराना है, इस इंसान का हो सकता है, डीएनए अगर आप ले आए तो मैच कर देंगे, दिस. वी आर जस्ट गोइंग टू हेल्प देम. जो फाइनल मैनर ऑफ डेथ है, ये फाइनल जो कोर्ट में होता है, वो आप एज ए स्पेशलिस्ट जो विटनेस होते हो, अपना देते हो स्टेटमेंट, आपने ऑटोप्सी परफॉर्म की है, आप उसके बारे में बताते हो. बट फाइनल जो चीज़ है, जो केस को सॉल्व करना है, दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू. ठीक है, ये जस्ट एनालाइज द एविडेंस जो मिली है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बताएं. उसके बाद to proceed for the crime scene, basically the two things are very important. First is obviously the physical evidence which you find from that. That physical evidence basically help us to basically they can basically tell the tale of whole people. जो भी चीज़ थी, एक सिंगल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, आपने सारा कुछ ले लिया, बट क्या किया आपने नेल्स जो थे ना विक्टिम के, उसके अंदर नहीं एग्जामिनेशन किया, and that nails contains the epithelium of that assailant, जहाँ से आपको proper DNA मिल सकता था, वो मिस कर दिया आपने. Maybe the person doesn't ejaculate there or seminal stain जो आपको नहीं मिल रहा है, और आपने सिर्फ epithelium nail की मिस की, मिस कर होते हैं. So that is why it is very important to have a thorough investigation, thorough collection of the all the traces. Then the crime scene, obviously, the crime scene itself की बड़ी importance है. जब एक सुसाइड होती है तो क्या होता है? When you visit that area, you should know कि एक सुसाइड अगर हुई है तो वहाँ पे क्या प्रीरेक्विजिट्स हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा? दरवाजा लॉक होगा, बोल्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. फिर और क्या हो सकता है सुसाइडल सीन ऑफ क्राइम पे? डिड यू फाइंड साइंस ऑफ स्ट्रगल? मोस्ट ऑफ द टाइम यू डू नॉट. देन अनडिस्टर्ब सीन होता है, या अगर हैंगिंग हुई भी है तो आपको कोई स्टूल नजर आ सकता है अगर वो इतनी बड़ी कोई ऊंची जगह है, या कोई बेड से कर सकता है तो चलो ठीक है. बट आपने यही देखना होता है कि आपको लगता है कि ये सुसाइड हुई है कि नहीं है. तो सुसाइड में नॉर्मली अगर उसका रिवॉल्वर से हुआ है तो कैडेरिक स्पैज़म की वजह से रिवॉल्वर शुड बी मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन, या पास कहीं गिरा होगा. तो आपने जब इन्वेस्टिगेट करना है उसे, और सुसाइडल नोट कैन बी देयर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो बाद में राइटिंग एक्सपर्ट्स और वो सब देख लेते हैं कि खुद लिखा हुआ है या किसी और ने बताया. तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन यू विजिट द सीन ऑफ क्राइम. थॉरोugh इन्वेस्टिगेशन. सो क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं सीन ऑफ क्राइम की, देयर बेस्ड ऑन द मोटिव ऑफ द क्राइम. फॉर एग्जांपल, अगर होमिसाइड है, रोबरी है, सेक्सुअल असॉल्ट है, तो अपने माइंड में आप सीन ऑफ क्राइम के लिए no talking while you are continuously talking. Based हुआ होता है इसके ऊपर कि आपने फिर अपने माइंड में उसी तरह से शायद यहाँ पे कौन है उनके टेंडेंसी लोग जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं. फर्स्ट लेक्चर है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने ऑब्वियसली अपना प्लान स्ट्रेटेजी, अपने सारा ग्रिड बनाना होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि मोटिव ऑफ क्राइम क्या है. यू शुड नो अबाउट कि इज इट एन ऑर्गेनाइज क्राइम लाइक एक रॉबरी, और ऑर्गेनाइज हो क्या है, और इट इज जस्ट इन अ रेज कि दो लोग आपस में थे, बात कर रहे थे, बात करते करते लड़ाई हुई एंड द थिंग्स हैपन. सो ऑब्वियसली दैट मोड ऑफ कमिटिंग क्राइम, उसकी वजह से आपको चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट मिलेंगी. देन क्रिमिनल बिहेवियर था कि नहीं था, एक्टिव था, पैसिव था, उसने स्टार्ट किया था, या डिफेंस में जो है वो एक इंसान ने दूसरे को मारा है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. किसी गाड़ी के अंदर हुआ है, घर के अंदर हुआ है, लॉन में हुआ है, ठीक है. नाउ हु कैन विजिट नॉर्मली द सीन ऑफ क्राइम? First of all, obviously in Pakistan, modified continental system में the police officers are normally the first persons who visit the scene of crime, and it is their responsibility to preserve the scene of crime. क्योंकि scene of crime पे जाके आपने कुछ भी शुरू में टच नहीं करना होता, आपने सब कुछ वैसे ही छोड़ देना होता है, ताकि आप पहले उसको ऑब्जर्व करोगे और फिर वहाँ से कलेक्शन करोगे.
नॉर्मली क्राइम सीन यूनिट होता है जो फोरेंसिक साइंसेज एजेंसी का है, उनकी पूरी टीम जा सकती है स्पेसिफिकली इन केस ऑफ एक्सप्लोजन और जो बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वहाँ पे उनको कॉल किया जाता है। नॉर्मल केसेस के अंदर अभी पंजाब में स्पेसिफिकली, बाकी जगहों पे तो वो है ही नहीं, सिर्फ पुलिस ही है, लेकिन जो पेशावर में बनी है और जो लाहौर में है वो जो जाते हैं पंजाब में और NWs में आपके खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे क्राइम सीन एजेंसी के स्पेसिफिक है, अदरवाइज डॉक्टर को वो होता है, पुलिस होती है सिर्फ। देन द मेडिकल एग्जामिनर इन सम स्पेसिफिक केसेस जा सकता है। स्पेशलिस्ट आर नीडेड, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हैं वहाँ पे, मैगट्स मिले हुए बॉडी पे या कोई और इंसेक्ट्स हैं, तो एंटोमोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है कि उसको वहाँ पे लेके जाते हैं। समटाइम्स फिंगरप्रिंट्स ऐसे हैं कि आप उन्हें प्रिजर्व करके कलेक्ट नहीं कर पाते, तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स वहीं पे जा सकते हैं स्पेसिफिकली। साइकोलॉजिस्ट वहीं पे समटाइम जाके जो सुसाइड अटैम्प्ट्स हैं तो उनके लिए वो थोड़ा सा देख सकते हैं या सुसाइड हो गई है तो स्पेशलिस्ट कैन गो देयर। एंड देन डिटेक्टिव्स ऑब्वियसली प्राइवेट अगर किसी ने हायर किए हुए तो वो भी जा सकते हैं एट द सेम टाइम। ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन का ये है कि हमने जितनी भी चीज़ें वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो अपने दिमाग में फॉलो करने एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल आपने काम करना है। प्रिंसिपल एक सिंपल सा है जो फिजिक्स में पहले दिन से शुरू होगा और एंड तक होगा, दैट इज नोन एज लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। ये अपने माइंड में बिठा लो क्योंकि आपकी आगे जितनी भी फोरेंसिक मेडिसिन स्पेसिफिकली ट्रेस एविडेंस से रिलेटेड है उसमें लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल, दैट मीन्स एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस एंड नॉर्मली दैट इज अ 2-वे प्रोसेस, बल्कि 3-वे भी हो सकता है। आपस में दो लोग लड़े हैं, ऑब्वियसली एक से दूसरे में कोई चीज़ें गई हैं और कुछ चीज़ें हैं जो सीन पे भी चली गई हैं, उनकी आपस में हेयर गिर गया है और समटाइम्स अगर ग्रास है या कुछ ऐसे तो सीन ऑफ क्राइम भी दे रहा है वो चीज़, ठीक है, वहाँ से कोई ऐसी श्रब है कोई चीज़ है जो उसके साथ अटैच होती है। सो लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या कहता है, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस एंड दिस इज नॉर्मली अ 2-वे प्रोसेस, ठीक है। तो इसके ऊपर आपकी जो ट्रेस एविडेंस है और जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करेगी कि अकॉर्डिंग टू दैट आप कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो लोग यहाँ पे थे तो कोई हमें ट्रेस एविडेंस दूसरे का नाम है, ठीक है। इसको आपने बेसिस बना के चीज़ें करनी होती हैं, उसी में आपने रिकग्निशन करनी होती है, आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। दीज आर द थिंग्स which you are going to do at the scene of crime. For example, identification में आप गए, आपने सीन का सर्वे किया, कोई डॉक्यूमेंटेशन थी वो कंप्लीट की अपनी और उसी की कलेक्शन की भी आपने स्पेसिफिकली चीज़ें हल्की हल्की आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं। उसके बाद आपने चीज़ उठा ली और साथ आप कंट्रोल करके उसकी कॉम्पिटेंट टेस्टिंग कर सकते हो, दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन कि ये इंसान मुझे लगता है यही है, कोई पिक्चर है कुछ ऐसे है, ID कार्ड है कुछ ऐसा है, कंफर्म कर लिया कि ये इंसान ये है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन वहाँ पर दे दीजिए। फिर उससे आपने इवैल्यूएशन की, इंटरप्रिटेशन की, जो आपको ट्रेस एविडेंस मिला था कि ब्लड ऐसे गिरा हुआ है, ये ऐसे है। अभी ये फर्स्ट इनिशियल थिंग है जो आप वहाँ से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हो, तो इसको इधर से गोली लगी होगी, ये आगे को गिरा होगा और ब्लड इस तरह पड़ा हुआ है। अगर उसको ऑपोजिट लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर पीछे गोली लगी हुई है और पीछे ही उसको ब्लड जो है वो सारा होगा, तो आप कह सकते हो कि मे बी बॉडी को बाद में मूव किया गया है, ठीक है। तो वो अपनी इन्फ्रेंसेस जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो आप इंडिविजुअलाइजेशन में कर रहे हो एंड देन इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, इन सम केसेस you are physically reconstructing the scene, but in most of the cases in your mind you are reconstructing the scene कि ओके ऐसे हुआ होगा। सो ये चार चीज़ें आप वहाँ पे जाके सोच रहे होते हो, बट इनको करने के लिए आप नॉर्मली फेजेस अपने माइंड में बनाते हो कि मैं ये करना कैसे। क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आते थे, ओके क्या हुआ होगा, व्हाट हैपेंड, वेयर डिड इट हैपन, यहीं पे हुआ या कहीं और हुआ, व्हेन, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके फिजिक्स में पोस्टमार्टम और इन सब चीज़ों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। व्हाई डिड इट हैपन बाद की बात है, ये अभी आप इतना नहीं सोच रहे होते हो, ठीक है। और डॉक्टर्स नॉर्मली व्हाई का इतना नहीं सोचते, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सोचती है व्हाई का। हु मे हैव रिस्पांसिबल फॉर दोज एक्शंस, ठीक है, अगर कहीं पे आपको आइडिया हो रहा है। हाउ वाज द इंसिडेंट कैरिड आउट, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वो चीज़ें जो रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रही होती है। अब आएगी प्रोसेसिंग है, आप गए हो वहाँ पे तो आपने क्या कर लिया, सबसे पहले मुझे मैं बता रही हूँ, सिक्योर करना है कि कोई एक्स्ट्रा इंसान वहाँ पे ना आए, जो पाँव रखते तो जो फुट स्टेप था वो गायब हो जाए, फिंगरप्रिंट थे वो चले जाए। तो सिक्योर करना है एरिया, कॉर्डन ऑफ करना है एरिया, ठीक है, और प्रोटेक्ट करना है एरिया फ्रॉम द जनरल पब्लिक। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिफोर टचिंग एनीथिंग, एवरीथिंग शुड बी फोटोग्राफ्ड और वीडियोग्राफ्ड, ठीक है।
और स्केचिंग भी बहुत ज़्यादा की जाती है और अभी भी की जाती है। लाइक बॉडी पड़ी हुई है तो उसकी साइड्स के ऊपर प्रॉपर स्केच कर देते हैं कि बॉडी को जब वहाँ से हम रिमूव करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो जगह पे बॉडी की स्केच बना हो, ठीक है। सो वो आप करोगे, देन यू लोकेट एंड मार्क द ट्रेस एविडेंस। ओके, ये देखो ये ब्लड का एक ड्रॉप पड़ा हुआ है, ओके ये मुझे हेयर लग रहा है, ये उसकी शर्ट का एक बटन है, ठीक है। वो लोकेट करके वहाँ पे आपने पहले क्रॉस करके बता देना है। ये आपके शुरू के जो आप कर रहे हो प्रीव्यू फेज ना, उसके अंदर की चीज़ें आप देख रहे हो। उसके बाद आप कह रहे हो कि ओके नाउ मेरे पास सारी चीज़ें मुझे पता है, मैंने पाउडर फेंकना है, ठीक है, और मैंने फिंगरप्रिंट उठाना है। मुझे पता है कि यहाँ ब्लड जो है इस तरह से पड़ा हुआ है, इसको मैंने ऐसे उठाना है। फिर आपने डिस्पैच करना है, और ये हम बहुत डिटेल में क्योंकि बाद में पढ़ेंगे ट्रेस एविडेंस के चैप्टर में, तो इसको हम जस्ट ओवरव्यू कर लें कि पैक भी ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके से करना है और वो पैक करके मुझे भेजेंगे। देन दिस इज इम्पॉर्टेंट कि फेजेस ऑफ सर्च क्या है। जब आप रोल प्ले करोगे तो भी आप अपने माइंड में इन फेजेस को रख के काम करोगे। तो फर्स्ट फेज आपका आ जाता है कि आपने प्रीव्यू करना है, जिसमें ये सारी बातें हैं कि आपने जाके आंखों से देखना है, ऑब्जर्व करना है कि चीज़ें क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। सो ये वो फेज है जहाँ पे आपके दिमाग में हिस्ट्री आएगी, आपके दिमाग में आएगा कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, और आपने कुछ भी टच नहीं करना इन द प्रीव्यू फेज, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास, वहाँ पे आपने उसका इंटरप्रेट करके आप और करीब चले जाओगे अपनी चीज़ें और पास कर लोगे और रिव्यू कर लोगे कि ये मैंने देख लिया है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। एग्जैक्ट लोकेशन और मार्किंग जो है वो आपकी रिव्यू के फेज में होती है, ठीक है। उसके बाद अगला फेज होता है रिकवरी, वेयर यू आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल द एविडेंसेस, कि आपने कलेक्ट करके जो जो चीज़ें हैं आपने कोठरी करके डाल दी। स्पेसिमेन कलेक्शन, हर एक को आपने कलेक्ट करना है, लेबल करना है, प्रिजर्व करना है एंड देन डिस्पैच करना है। उसके बाद एंड में आप करते हो ओवरव्यू, और फिर ओवरव्यू में होता है कि आपने सब कुछ देख लिया, आप दोबारा एक इंसान, नॉर्मली अच्छी बात होती है कि टीम वर्क होता है ना, तो जिसने पहले इकट्ठा किया होता है वो नहीं, जो लीडर होगा वो नॉर्मली जाएगा और क्या किया कि अब आपने ये वो चीज़ है जहाँ पे आपने दोबारा गए और एक और पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा है, ताकि आपको लगे कि मैंने कोई ट्रेस एविडेंस मिस तो नहीं कर दिया। तो दैट इज द स्टेज ऑफ ओवरव्यू, ठीक है। इस तरह से आपका क्राइम सीन नजर आ सकता है किसी भी एक वे में, किसी भी एक तरीके से, और आप चीज अप्रोच हो सकती है लोकेटिंग की, वो यू कैन यूज द ग्रिड पैटर्न, ठीक है, कि ग्रिड की तरह से आपने ये क्राइम सीन है फॉर एग्जांपल, तो इसके ग्रिड के हिसाब से कर सकते हो। यू कैन हैव द स्पाइरल पैटर्न, अब वो इनर है या आउटर है, जिस तरह से भी आपने शुरू कर देना है, ठीक है, वहाँ से आप अपनी इसको लोकेट कर सकते हो। देन यू कैन हैव द पैरेलल सर्च पैटर्न, दो टीम्स बन गई और पैरेलली जो है वो सीन ऑफ क्राइम को कर रहे हैं। तो दीज आर द 3 वेज जो आप क्राइम सीन पे जाके अपने उन्हीं फेजेस को अपने दिमाग में रखते हुए, कलेक्शन में भी वही और ऑब्जेक्टिव्स भी वही दिमाग में रखते हुए, इन 3-4 मेथड्स के थ्रू आप अपनी क्राइम सीन से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ठीक है। अब जो आपने सर्च की चीज़ें, तो दैट कैन बी द विक्टिम्स क्लोथिंग, दैट कैन बी द फिंगरनेल्स स्क्रैपिंग, दैट कैन बी हेड या pubic hair, blood can be there, ठीक है, vaginal, oral, anal swabs can be there if the body of the person is there, but most of the time अक्सर क्या करते हैं कि अगर alive है तो वहाँ पे नॉर्मली उसके सैंपल नहीं लेते, उसको ट्रांसफर कर देते हैं टू द मेडिकल यूनिट और वहाँ पे लेते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ के ऊपर वो ये सब चीज़ें आपको नजर आती है तो वो आप कलेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बुलेट्स, ठीक है, हैंड स्वैब, दीज आर ऑल थिंग्स जो है वो आपने कलेक्ट करना। अब जो कलेक्शन आपने करनी है ना, जो आपने प्रॉपर्ली करनी है, वो आपने ग्लास या प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर रखनी होती है, मोस्ट प्रेफरेबली द ग्लास बॉटल्स, बिकॉज प्लास्टिक में प्रिजर्वेटिव और ये थोड़े से प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। पेपर बैग्स कैन बी यूज्ड फॉर दैट। मेलिंग एनवेलप्स जो होते हैं वो नहीं यूज़ करने होते, प्रॉपर पेपर बैग्स यूज़ करने होते हैं। एयर फाइबर प्लेस्ड इन द वॉयल विच आर देन प्लेस्ड इन द पेपर बैग, तो वो स्पेसिफिक तरीके से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आपको वहाँ पे वेट स्टेन मिलेगा तो आप उस वेट स्टेन को कैसे करोगे? थोड़ा सा स्टेन है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा होगा तो आप पिपेट से ले लोगे, ज़्यादा ब्लड है अगर तो आप पिपेट से लेके उसे रख लोगे, प्रिजर्वेटिव डालोगे, ठीक है। अगर आपको छोटा सा स्टेन यहाँ ब्लड का तो गीला है, हाँ, पहले आप उसको कोई कॉटन वगैरह लेके आप उसको लोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसे एयर ड्राई करके उसको आप टेस्ट ट्यूब में डालकर खींचोगे, ठीक है। अगर आपके पास ड्राई है, लाइक फॉर एग्जांपल इस डाइस के ऊपर ड्राई है, तो क्या करोगे, उसको स्क्रैप करोगे, फिल्टर पेपर में डालोगे और फिर ड्राई को आप करोगे। सिमिलरली इन केस ऑफ सैमुअल स्टेन, इफ इट इज ऑन अ क्लॉथ एंड इट इज वेट,
यू हैव टू एयर ड्राई इट, देन पॉलीथीन बैग में कवर करोगे, लेबल करोगे और फिर डिस्पैच करोगे. ड्राई में भी आप, अब मजे की बात है बहुत जगहों पे ऊपर लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ शर्ट, डू नॉट कट दैट पार्ट ऑफ द शर्ट हैविंग द स्टेन. You have to send the whole cloth, whole shirt, because of one is for the control, secondly for the hidden and wash stains. उनकी वजह से आप पूरी शर्ट को डिस्पैच करोगे, सिर्फ क्लोथ्स को नहीं करोगे. कई जो छोटी बुक्स है ना, लाइक जो आप लोग हेल्पफुल बुक्स यूज करते हो उसमें ये गलत लिखा होता है. ठीक है, तो ये आपने इस तरह से सारी चीज़ों को कलेक्ट किया. कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि चॉइस ऑफ स्पेसिमेन आपने क्या लेनी है, प्रिजर्वेटिव क्या लेना है, बॉक्स कौन सा लेना है, साइड कौन सी लेनी है. ये सब चीज़ें उस बंदे को जो कलेक्ट कर रहा है उसके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, ये हम डिटेल्स में करेंगे इन केस ऑफ जो हमारा होगा ट्रेस एविडेंस का चैप्टर. वहाँ पे आप बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी के लिए क्या करोगे, दूसरे के लिए क्या करोगे, बॉटल्स कैसे यूज़ करोगे, और वो एक डिटेल्स में इसको करेंगे. इसलिए मैं इसको भी बहुत ज़्यादा इस तरह आपको बता नहीं रही और नॉर्मली वही बात. ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये वही बातें कर क्वेश्चन और वो वाला. ठीक है, अब आपने कंटेनर में जो लिया वो अप्रोप्रिएट होगा. एंड जो आपने करना है ना, लाइक जब आपने क्राइम सीन का कलेक्ट करके आपने भेज दिया, उस सब चीज़ को आपने क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक काम करते हैं, उसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी. आपको क्या समझ आती है द वर्ड चेन ऑफ कस्टडी से? चेन ऑफ कस्टडी मीन्स कि एवरी पर्सन जो इन्वॉल्व है शुरू से, right, beginning from the scene of crime till the end, he should be aware of the nature of the act which is done. He should be aware कि चीज़ें कैसे हैं कैसे नहीं है, सारा पर्पस पता हो, जो उसके पास चीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो. ठीक है, और वो इतना रिलायबल पर्सन हो. सेकेंडली, the shorter the chain the better it is. Less persons are involved, less chances to breach that, कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, और जब भी आपने सैंपल रखना है, लेना है, देना है, रिटर्न रेसिप्ट होनी चाहिए. रेसिप्ट वैसे नहीं कि ज़बानी आपने पुलिस को पकड़ा दिया या पुलिस ने आपको पकड़ा दिया. एवरीथिंग शुड बी रिटर्न, और वो जो स्पेसिमेन कलेक्शन है वो एक प्रॉपर वे में भी हो और डिस्पैच भी एक प्रॉपर वे में हो. सो प्रिंसिपल की वही बात है कि सीक्रेसी शुड बी मेंटेन्ड. शॉर्टर द चेन श्योरर इट इज़, एंड श्योरर द चेन बेटर इट इज़. ये इंपॉर्टेंट आ जाता है. और जब आपने सारा कुछ कर लिया तो मेडिकल एग्जामिनर या मेडिको लीगल एग्जामिनर जो है वो अगर बॉडी दी है तो वो ऑटोप्सी करेंगे. ऑटोप्सी करके वो आपको क्या क्या बता सकते हैं, वो एज बता सकते हैं, इंडिविजुअलिटी बता सकते हैं उस पर्सन की, मेडिकल कॉज ऑफ डेथ बता सकते हैं, मोड बता सकते हैं. दे कैन टेल द मैनर ऑफ द डेथ, बट एज अ डॉक्टर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कमेंट ऑन द मैनर. मैनर क्या होता है? मैनर ऑफ डेथ क्या हो सकते हैं? Natural or unnatural. In unnatural, it can be homicidal, it can be suicidal, it can be accidental. So, as a doctor, आप फॉर एग्जाम्पल हैंगिंग बता रहे हो. ठीक है, और हैंगिंग नॉर्मली जो होती है वो सुइसाइडल होती है, एंड स्ट्रैंगुलेशन नॉर्मली होमिसाइडल होती है. तो जो आपकी फाइंडिंग होंगी ना, आप उन फाइंडिंग को ऐसे बताओगे कि ओके दिस इज हैंगिंग, या ये ऐसी चीज़ें हैं, बट आप अपने वर्ड में होमिसाइडल या सुइसाइडल पे कमेंट नहीं करोगे एज अ डॉक्टर. ठीक है, इन्फ्लुएंसेस आप ड्रॉ करके बता रहे हो या आप उनको खोल के सब कुछ बता रहे हो, बट ये जो डिसीजन है इज होमिसाइडल, सुइसाइडल, एक्सीडेंटल, दैट शुड बी एंटायरली टू कोर्ट एंड लॉयर एंड द पुलिस. आपने हेल्प आउट करना है तो मैनर पे कमेंट डॉक्टर नहीं करेगा. मे बी उसको मैनर क्लियर भी है, पता भी है, लेकिन कमेंट लीगली आपने मैनर पे नहीं करना. यू आर गोइंग टू टेल द मेडिकल कॉज की गोली लगी, ये हो गया, दिस एंड दैट, बट आप ये नहीं बताओगे एग्जैक्टली. आप हेल्प कर सकते हो कि यूँ लगी हुई है तो मुझे मतलब ये चीज़ें हैं, और सुइसाइडल में ये होती हैं, होमिसाइडल में ये होती हैं, इसमें ये होती हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन द मैनर ऑफ द डेथ. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आप बता सकते हो. टाइम सिंस डेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप बताओगे कि पोस्टमार्टम इंटरवल कितना है, फैटल पीरियड कितना था इस पर्सन का, ये जो इंजरी लगी हुई है ये आफ्टर डेथ तो नहीं है, तो ये सब आप बताओगे, बट आप मैनर नहीं बताओगे. ठीक है, तो इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एज ए डॉक्टर वो ये हैं कि आप एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है टू ऑब्जर्व द सीन ऑफ क्राइम विच हेल्प यू टू फर्दर डन ऑटोप्सी टू दैट थिंग. ठीक है, या मेडिको लीगल है तो एग्जामिनेशन वगैरह करने में आपको ईजी होगा इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सपोज टू द सीन ऑफ क्राइम. ठीक है, तो ये आपकी मिस इंटरप्रिटेशन जो होती है वो मिनिमम हो जाएगी अगर आपने डॉक्टर ने अपनी आंखों से सीन ऑफ क्राइम को विजिट कर लिया होगा, सेटिस्फाइड होगा, कलेक्शन से सेटिस्फाइड होगा, सिलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस का उसको आइडिया हो जाएगा कि ये सीन था, इसलिए उन्होंने ये बायोलॉजिकल एविडेंस कलेक्ट किए
और मतलब हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी का है तो आप इन चीज़ों को लेना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। तो ये सारा आपका पर्पस आ जाता है। सो बेसिकली जो आपके लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, हमने इसीलिए बहुत शॉर्ट करके बताया है। वन थिंग इज दैट यू शुड नो अबाउट व्हाट इज बेसिकली क्राइम सीन, ठीक है, होता क्या है, कितनी टाइप्स हो सकती हैं क्राइम सीन की, अकॉर्डिंग टू कि आउटडोर है इंडोर है, आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ से कलेक्ट करनी है, व्हाट आर बेसिकली द ट्रेस एविडेंसेस, कौन कौन से होते हैं ट्रेस एविडेंसेस के लिए, आपकी फेजेस कौन सी हैं, प्रीव्यू, रिव्यू, ठीक है, ओवरव्यू, रिकवरी फेज, वो कौन है, टीम में कौन कौन लोग हो सकते हैं, ठीक है, हु कैन विजिट दैट। जब आप जाओगे तो आपके पास स्टेप्स 7 स्टेप्स नॉर्मली होते हैं, जिसमें आप स्टार्ट फ्रॉम द गार्डनिंग ऑफ फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें, वो सब आपको पता होनी चाहिए, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ जाने के, और आप क्या हेल्प आउट कर सकते हो, और सीन ऑफ क्राइम जो है वो उसमें से कौन कौन सी कलेक्शन हो सकती हैं, उन कलेक्शन को करने में क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, जैसे ड्राई है, वेट है, तो किस तरह से करना है। तो ये आपका एक प्रॉपर जो है वो, इससे ज़्यादा कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप प्रॉपर बहुत ज़्यादा जाके सीन ऑफ क्राइम पढ़ो। तो ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है, और आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि आपकी बुक में आई गेस क्राइम सीन स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन?